morning and welcome students in the DSCJ home classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Worthy Director Madam Anuradha Gupta ji, Directorate of School Education, Jammu. Let me introduce myself first. I am Baljeet Kaur Master, presently posted at Government High School, Digyana. Hello students, welcome to my YouTube channel Social Studies Interesting with Baljeet Kaur. As you know, we have already done chapter 5 of History, Print Culture and the Modern World. And today we are going to discuss textual questions, all question answers of the lesson. And lesson starts with first question is give reasons for the following. हमने ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके रीजंस देने हैं, तो उसमें आपका जो पहला बिल्कुल एक एक दो दो लाइंस में स्टेटमेंट्स देनी है. पहला है वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295. आंसर है वुड ब्लॉक प्रिंट वाज इन्वेंटेड अराउंड द 6th century in China. Marco Polo returned to Italy from China in 1295 and brought with him the knowledge of woodblock printing. यानी कि वो आया मार्को पोलो, तो उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो यूरोप में लाई और वह 1295 में आया था. ये आंसर है. बी पार्ट है मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट. आंसर इज Martin Luther's criticism of Roman Catholic Church reached a large section of masses because of print. Hence he was in favor of print and spoke out in praise of it. यानी कि जो मार्टिन लूथर था उसने जो भी लिखा वो लोगों तक पहुंचा, प्रिंट की वजह से ही पहुंचा, इसलिए वो उसके फेवर में था. ठीक है, इसलिए उसने इसकी प्रेज भी की, प्रिंट कल्चर की प्रेज भी की. तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आंसर आप ये समझ सकते हो कि 1295 में मार्को पोलो यूरोप लेकर गया और इसमें क्योंकि उसने प्रिंट के जरिए लोगों तक पहुंचा था इसलिए उसने प्रेज की, प्रिंट की. Question number C. The Roman Catholic Church began keeping an index of prohibited books from the mid-16th century. यानी mid-16th century के बाद रोमन कैथोलिक चर्च वाले जो है एक इंडेक्स बनाने लगे कि कौन कौन सी बुक्स प्रोहिबिटेड हैं. आंसर है बिकॉज ऑफ प्रिंट न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ पब्लिक रीच टू people and they started questioning the authority of church. Due to this, the Roman Catholic Church began keeping an index of prohibited books from mid-16th century. यानी कि ये प्रिंट की वजह से ही हुआ कि पब्लिक की जो इंटरप्रिटेशंस थी प्रिंट की वो पीपल दूर दूर तक लोगों तक पहुंची और लोगों ने चर्च की जो बुराइयां थी उन पर क्वेश्चनिंग शुरू कर दी. इसी वजह से जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उन्होंने इंडेक्स बनाकर बुक्स को प्रोहिबिट कर दिया. डी पार्ट है क्वेश्चन का. गांधी सेड द फाइट फॉर स्वराज इज ए फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. आंसर है Gandhi considered that the liberty of speech, liberty of press and freedom of association were three most powerful vehicles of expressing and cultivating public opinion. Therefore, he said, the fight for Swaraj is a fight for liberty of speech, liberty of press and freedom of association. यानी कि इन्हीं के जरिए लोगों के बीच में पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे. तो सबसे पहली बात जो इस बुक में हमारे पास आती है वो है गुटनबर्ग प्रेस. तो प्रेस की वजह से ही सारी रेवोल्यूशन हुई थी ना, तो गुटनबर्ग प्रेस वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज डेवलप्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग इन 1430s. In 1448, Gutenberg perfected the previous press of olive and wine. The first book he printed was Bible. He produced 180 copies of Bible in 3 years. प्रिंटिंग के आने से गुटनबर्ग प्रेस जो है उसके आने से पहली बुक बाइबल छपी जो 180 कॉपीज 3 साल लगे उसको बनने में, और ये गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी. बी पार्ट है इरास्मस आइडिया ऑफ प्रिंटिंग बुक. Erasmus was the Latin scholar and a Catholic reformer. He criticized the printing of books. He thought that most of the books are stupid, ignorant, scandalous. And third part है
The Vernacular Press Act. Modeled on the Irish press laws, it was passed in 1878. This law gave the government rights to censor reports and editorials in the vernacular press. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if warning was ignored, the press was liable to be seized and machinery confiscated. यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये एक्ट पास हुआ था 1878 में। आयरलैंड में एक एक्ट पास हुआ था, उसी की नकल थी ये जो इंडिया में पास हुआ। और इस लॉ से गवर्नमेंट को राइट्स मिलते थे कि वो जो इंडियन अखबारें लिखती थी उनको सेंसर कर सकते थे, और अगर कोई ना माने तो वो उनकी जो प्रेस है उसको सीज भी कर सकते थे और मशीनरी को ताला लगा सकते थे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू, यानी कि 3 पार्ट्स हैं इसमें, एक अ वुमन, सेकंड है द पुअर एंड तीसरा है रिफॉर्मर्स, यानी कि प्रिंट कल्चर से इन तीनों पर क्या क्या असर हुआ। तो लेट्स टेक फर्स्ट अ वुमन। The spread of print culture in 19th century in India brought about educational reforms for women. Liberal fathers educated their daughters at home and into the schools meant for women. Women started writing articles for journals in favor of women literacy. Some examples: Rash Sundari Devi's autobiography, Amar Jiban in 1876. Many women learned to write and read in secret like in kitchens. यानी कि वुमेन की लाइफ पे बहुत सारा असर हुआ। इसकी वजह से एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए। जो आज़ाद ख्याल वाले जो लिबरल फादर्स मीन्स जो अच्छे फादर जो थे मॉडर्न, वो उन्होंने अपनी बेटियों को एजुकेशन दिलवाई, घर में भी दिलवाई, और जो स्कूल्स उन लड़कियों के लिए वुमेन के लिए खोले गए थे उनमें भी बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को भेजा। कुछ ने अपने बारे में लिखा, अपनी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी। फिर पुअर पे क्या इफेक्ट हुआ? They benefited from the spread of print culture in India because they were able to use low price books and public libraries. यानी जो गरीब लोग थे उनको प्रिंट कल्चर का ये असर हुआ कि जो अब सस्ती किताबें छपने लगी तो वो किताबों की मदद से वो पढ़ सकते थे, और उनके लिए स्पेशली पब्लिक लाइब्रेरीज भी बनाई गई थी। रिफॉर्मर्स पे क्या इफेक्ट हुआ? एनलाइटनिंग एसेज अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर रेड बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री। जो कि ऐसे एसेज लिखे गए जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लिखे गए थे, अब पूरी कंट्री में उनको पढ़ा जाने लगा। सोशल रिफॉर्मर्स सेट अप लाइब्रेरीज फॉर सेल्फ एजुकेशन एंड सम ऑफ देम इवन पब्लिश्ड देयर own वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल काशी बाबा एंड हिज छोटे एंड बड़े का सवाल, ये बुक का नाम है। ज्योतिबा फुले एंड हिज गुलामगिरी, ये भी बुक का नाम है। यानी कि रिफॉर्मर्स ने लाइब्रेरीज भी सेट की और खुद किताबें भी लिखी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस में, व्हाई डिड सम पीपल इन 18th century यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड एंड डिस्पोटिज्म। क्यों लोग 18th सेंचुरी के ये समझते थे कि प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों में जागरूकता आएगी और जो डिस्पोटिज्म है, जो अथॉरिटी है, उसके खिलाफ लोग जागृत होंगे। आंसर है, many people in 18th century Europe thought that the print culture has the power in it to bring enlightenment and end despotism. This would help in spreading of literacy and knowledge among all class of people. Social reformers like Louis Sebastian Mercier and Martin Luther felt that the print culture is the most powerful engine of progress and public opinion, and hence it would definitely bring enlightenment and an end to despotism. उनका मानना था कि इसकी वजह से ही एक प्रोग्रेस आती है और पब्लिक ओपिनियन बनता है, तो जिसकी वजह से जागरूकता आएगी ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर में है, व्हाई डिड सम पीपल फियर द इफेक्ट ऑफ इजीली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स? चूज वन एग्जांपल फ्रॉम यूरोप एंड वन फ्रॉम इंडिया। आंसर में देखिए, सम पीपल feared the effect of easily available printed books. Their cause of fear was that due to the spread of literacy among the common people, they may lose their position or authorities. Some people feared that this may lead to the spread of rebellions and irreligious thoughts.
मतलब कुछ को ऐसे लगता था कि जब सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, कॉमन पीपल, तो वो हमारी पोजीशन को ही चैलेंज करेंगे, और उनको ये भी डर था कि लोग हमारे खिलाफ बगावत ही ना कर दें और इरिलीजियस थॉट्स ज़्यादा डेवलप ना हो जाएं। अब हमने इनकी एग्जांपल्स देनी है। तो इन यूरोप द रोमन कैथोलिक चर्च ट्राई टू कर्ब द प्रिंटेड बुक्स, है ना, हमने पढ़ा ना पीछे कि रोमन कैथोलिक चर्च ने सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स को दबाने की कोशिश की एंड स्टार्टेड एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। और जो इंडिया की एग्जांपल है उसमें क्या है, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इम्पोज्ड restrictions on Indian press and various local newspapers also। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में लोकल न्यूज़पेपर्स पर बैन लगा दिया था। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th सेंचुरी इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जब आपने वो वाला इफेक्ट वाला क्वेश्चन करना है ना, तो उसी का जो रिफार्मर्स और पुअर पे इफेक्ट है वही इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे द पुअर पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस बुक्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, ये एक पार्ट आपने किया। Enlightening essays were written against caste discrimination. These were read by the poor and rich people across the country. On the encouragement and support of social reformers, overworked factory workers set up libraries for self-education, and some of them even published their own works. For example, काशी बाबा and his छोटे और बड़े का सवाल। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि जो हमने क्वेश्चन पीछे किया ना शॉर्ट नोट में कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर, उसमें जो जब आप प्रिंट कल्चर का इफेक्ट उस पे करोगे पुअर पीपल और रिफॉर्मर्स पे, तो उस दोनों को जोड़ दो तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग आंसर में, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, हर बार एक ना एक सेट में ये क्वेश्चन पेपर में आया होता है 6 मार्क्स का। तो आंसर देखिए, printed culture assisted the growth of nationalism in India by providing easy access to nationalist ideas and ideas of freedom and equality to the masses। लोग अखबारों से nationalist leaders की सारी बातें पढ़ सुन लेते थे। Social reformers could now print their opinions in newspapers which sparked of public debates। जब वो newspaper से लोग पढ़ते थे तो public debates होती थी उस पर। The power of reason made the common people question the authority of colonial power। पढ़ने से लोगों में रीजनिंग आई और रीजनिंग से वो गलत बातों के लिए अथॉरिटी को क्वेश्चन भी करते थे। व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू सेंसर एंड कंट्रोल प्रिंट मीडिया, nationalist newspapers grew in number everywhere in the country। They reported on colonial misrule and encouraged people to participate in nationalist activities। Attempts to censor anti-colonial publications aroused militant protests। तो इस तरह से ये थे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जल्दी से हम अब प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। जैसे है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन वेलम। वेलम क्या होता है? ए पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। डिफाइन मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखी जाने वाली। व्हेन वाज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878, 1878। Who invented the first printing press in Europe? Johann Gutenberg। कुछ छूट गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेम द बुक शोइंग लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। छोटे और बड़े का सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू गोवा विद पुर्तगीज मिशनरीज? मिड 16th सेंचुरी। ये भी आया है बहुत बार पेपर में, मिड 16th सेंचुरी। हु ब्रॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप? मार्को पोलो। मीनिंग ऑफ द वर्ड ईडो? टोक्यो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी को कहते हैं। नेम द कंट्रीज दैट डेवलप्ड अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी। कुछ कंट्रीज के नाम बताने हैं, चाइना, जापान एंड कोरिया। व्हाट वाज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग? पेपर वाज रब्ड अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, उसको कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। व्हेन एंड वेयर वाज चिल्ड्रन प्रेस सेट अप? इन फ्रांस इन 1857। जब इंडिया में हमारी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857, तब चिल्ड्रन प्रेस बनी थी, याद रखना। नेम टू पर्शियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया? जाने जहानामा एंड शमसुल अकबर। विच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? बाइबल। विच बुक वाज रिटन बाय मार्टिन लूथर? 95 थीसिस। तो दिस
with this your MCQs are complete dear students. तो इस तरह से ये ऑल क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं. मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं. तो आप सब ध्यान से इनको अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हैव ए नाइस डे.